शुरू में हमने बहुत हल्ला मचाया कि भाई ये तो तंबाकू है, जहर है, उसके कई साइड इफेक्ट है, पर उनका जवाब, उनका उत्तर नहीं हम दे पाए। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ठीक है जहर है, छोड़ देंगे, इसके बदले बताओ क्या करें। ये है सामाजिक, ये हमें प्रोग्राम से सीखने को मिलता है। इसके उत्तर में आज मैं देने वाला नहीं हूं, पर आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि सो मेनी प्रॉब्लम्स जो हेल्थ की हैं which get connected with certain things which એસોસિએશનનો હમણાં વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ થયો તો વી હેવ અબાઉટ 1500 થી 1600 મેમ્બર્સ ઇન્ડિયન રુમેટોલોજી એસોસિએશનના છે. ગુજરાતમાં રીનાબેન પ્રેસિડેન્ટ છે રુમેટોલોજીસ્ટ ગુજરાતના, પણ આઈ થિંક દેર આર અબાઉટ 35 જેટલા રુમેટોલોજીસ્ટ ગુજરાતમાં છે. તમે પોપ્યુલેશન જુઓ તો ઘણા ઓછા છે, અને અમદાવાદમાં હવે 8-10 છે. હું આવ્યો ત્યારે બીજો જ હતો, એક મુંબઈથી સાહેબ આવતા હતા, આઈ વોઝ ધ ફર્સ્ટ. ઇમેજિન કોઈ હતું જ નહીં હોત, અને પછી ધીમે ધીમે હવે વી હેવ અબાઉટ 10-12 10 થી 12 ટ્રેન્ડ રુમેટોલોજીસ્ટ છે. પણ તમે આંકડા જુઓ ગુજરાતના પોપ્યુલેશન પછી કાર્ડિયોલોજીસ્ટ કેટલા બધા છે, ન્યુરોલોજીસ્ટ, રુમેટોલોજીસ્ટ બહુ ઓછા છે. સો ચોપરા સાહેબની 3 ખાસિયત. એક તો એમના વિશે વાત કરીશ કે એપિડેમિયોલોજી જે સાહેબે વાત કરી કે ઘરે ઘરે જઈને સર્વે કરવું, આટલા બધા ઘરોમાં ગામડા એડોપ્ટ કરીને ત્યાં જઈને ઘરે ઘરે પૂછ્યું કે તમારા ફેમિલીમાં કેટલા લોકોને સાંધાનો દુખાવો છે. એના સાહેબ રુમેટોલોજી અમારી બ્રાન્ચના ભીષ્મ પિતામહ કહેવાય. આઈ થિંક ઇઝ ધી ઓનલી પર્સન, આઈ ડોન્ટ થિંક. અને સાહેબનું જ ઇનિશિયેટિવ છે કે જેને કારણે, અને આ કોપકોટ ઇન્ટરનેશનલ એક ફોરમ છે એમાં સાહેબ ની થ્રુ ઇન્ડિયાને, અને સિંગલ હેન્ડેડલી આટલા વર્ષો સાહેબે, કારણ કે બહુ અઘરી સ્ટડીઝ છે, ઇમેજિન, કારણ કે બહુ બધા લોકો જોઈએ તમારે ઘરે ઘરે જઈને છોકરાઓને ટ્રેન કરવા પડે, વોલન્ટિયર્સ ને બધાને. સો આઈ મસ્ટ સે કે સાહેબને લીધે આ, અને એનાથી જ અનુમાન આવે, કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે ખાલી પશ્ચિમ આંકડાઓમાં અમારી ચોપડીમાં ખાલી પશ્ચિમના જ આંકડાઓ કે ભાઈ રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ 1 પહેલા 5 વર્ષ પહેલા, પણ હું ના કરી શક્યો. તો હવે રીના અને હાર્દિક સાહેબનો વિદ્યાર્થી અમે લોકો મળીને ટ્રાય કરીશું કે આ શરૂ કરીએ. બહુ જરૂરી છે આંકડા ગુજરાતમાં. પહેલી વસ્તુ એપિડેમિયોલોજી. સેકન્ડ ઇઝ આઉટકમ મેજર કરીને એક દરેક રોગનું, આજે ડાયાબિટીસમાં તમને લોકોને ખ્યાલ હશે કે નહીં, ગ્લાયકોસાઇલેટેડ હિમોગ્લોબિન નામનું એક ટેસ્ટ હોય છે, જેના પરથી છેલ્લા 3 મહિનાનું તમારું ડાયાબિટીસ કેટલા કંટ્રોલમાં હતું એનો આઈડિયા આવે. આજે તમે મારી પાસે દર્દી તરીકે આવો, હું તમને પૂછું કેવું છે અને તમે કહો સારું છે, એનાથી નથી ચાલતું. મારે મેજરમેન્ટ લેવી પડે. જેમ બ્લડ પ્રેશરમાં તમે 130/70, એને આઉટકમ મેજર કહેવાય. કે તમારો સંધિવાત અત્યારે 2.4 છે, 2.6 છે, 3.5 છે, એવા સ્કોરિંગ સિસ્ટમ છે. તો એ સ્કોરિંગ સિસ્ટમ સાહેબના ક્લિનિકમાં દરેક દર્દીનું લેવાય છે, જે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે. સમજ્યા તમે? એવું નહીં કે કેમ છો, સારું. અને આપણે ત્યાં બી હવે શરૂ કર્યું છે, અમે લોકો ઘણા કરીએ છીએ. પણ આયુષ આ સરકારનો ઘણો બધો એમાં પુશ છે કે આયુષ, અને એમાં સાહેબ વન ઓફ ધી મેઇન મેમ્બર્સ છે ઇન્ડિયા તરફથી. અમારા સાયન્સમાં તો સાહેબનો પબ્લિકેશન પણ છે, જે વૈજ્ઞાનિક જર્નલમાં પબ્લિશ છે. અને મારું એવું માનવું છે કે આપણે અત્યાર સુધી બ્લાઇન્ડલી આમ માનીએ નહીં. કોઈને કોઈ કહે કે ભાઈ હળદર પીવાથી સારું થઈ જશે, તો એવું તો આજની જનતા, આજના છોકરાઓ ના મને પ્રૂફ બતાવો. અમારી લાઈન ક્રાઇમ બ્રાન્ચ જેવી છે. એવિડન્સ શું છે, એવિડન્સ કહેવાય, અમારે પ્રૂવ કરવું પડે. એટલે પણ જ્યાં સુધી આપણે લોકો, અને મેન હવે એલોપેથિક લોકો, ડોક્ટર્સ, જ્યાં સુધી આપણે આયુર્વેદને ચાન્સ નહીં આપીએ, કોઈ કીધું હળદર, તો ભાઈ હળદરની તમે સ્ટડી કરો, પ્રોપર સ્ટડી કરો. આપણે આયુર્વેદિક ડ્રગ્સને મોડર્ન મેડિસિનના એ પ્રમાણે સિદ્ધ કરીને તો જ આપણે પશ્ચિમ માનશે. ઇન્ડિયા લોકો માને નહીં, આપણને ગોરાઓ ક્યારે માનશે આપણને કે ના આ ડ્રગ તમારી ખરેખર સારી છે. જેમ યોગ હવે વર્લ્ડ ઓવર છે, ઇટ સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ ઇન્ડિયા એન્ડ ઇટ્સ વર્લ્ડ ઓવર નાઉ, અને લોકો માનવા માંડે છે. એટલે આપણે પ્રૂવ કરવું પડશે, ને અમારે એલોપેથિક ડોક્ટર્સે ભેગા થઈને એ ચાન્સ લેવો પડશે, કારણ કે એલોપેથિક લોકો જનરલી વધારે માને છે હજી બી. એટલે અમારે જે એમાં સાહેબનું બહુ મોટું યોગદાન છે, અને ઇઝ અ ગ્રેટ પ્રોપોનન્ટ. હું પુણે ગયો હતો ત્યારે આયુષના બી डॉक्टर्स बैठा था, અને બહુ સારી वस्तु थी, क्योंकि इनको समझता था मैं શું कहता था. जैसे सर, मैं डॉक्टर अरविंद चोपड़ा हूँ, मैं पूना से यहाँ आया हूँ अहमदाबाद, और मेरे बड़े सौभाग्य की बात है, मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, जोड़ों की बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ. और बहुत वर्षों से 30-35 वर्ष हो गए हम समाज में काम कर रहे हैं एक कार्यक्रम में जिसका नाम है कॉपकॉट, कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल फॉर रूमेटॉइड डिजीज़, जो कि विश्व आरोग्य संगठन WHO का कार्यक्रम था. 1996 में हमने शुरू किया था पूना के पास, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आप घर घर जाके समाज में पता कीजिए कि कितने लोगों के जोड़ों में दर्द है, हड्डियां दुखती हैं, पीठ कमर दुखता है, और जोड़ों की बीमारियों का निश्चित पता कीजिए. कितना आम बात है, कितनी सीरियस बीमारियां हैं, कितने लोगों को जो है उम्र की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो वेयर एंड टेयर की बीमारी है, कितने लोगों को पॉस्चर, किस लोगों को अपने बिजनेस की वजह से, काम करने से बीमारी. तो इन सब के आंकड़े क्रिएट किए
तो शुरुआत तो एक ही गांव में हुई थी, पर उसके बाद वो एक मॉडल तैयार हो गया जिसको हमने 21 जगह पूरे भारतवर्ष में अनेकों जगह में, जम्मू और इधर दिल्ली के कुछ इलाके, उधर बीकानेर, जोधपुर, डिब्रूगढ़, मणिपुर, गुवाहाटी, कलकत्ता, पूना में जहाँ से मैं आया हूँ, पूना में रलेगांव सिद्धि, बिगवन गांव जहाँ पे शुरू हुआ था, हैदराबाद, चेन्नई, कैलिकट, त्रिवेंद्रम। हमने सोचा कि इन जगहों पे जाके हमें कुछ भारत का नेतृत्व कर पाएंगे कि क्या रिप्रेजेंटेटिव क्या पूरे भारत के लिए। पर मैं मानता हूँ कि कुछ जगह बीच में अभी नहीं आ पाई जो कि हम कर रहे हैं, जैसे गुजरात में आए हैं, तो वो आंकड़े तैयार हो गए, वो पब्लिश हुए एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में, जिसका कि मैंने उल्लेख आपके प्रेस रिलीज में किया है। तो उसके आधार पर हम जानते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बर्डन है। भारत में जितने लोग जोड़ों की बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनको दर्द होते हैं, वो शायद हर एक बीमारी से आगे है। ये हमने उसमें है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर के कई गुना आगे हैं ये बीमारियाँ, जिससे कि जनता पीड़ित है। सब लोग डॉक्टरों के पास नहीं पहुँचते, अपना इलाज करते हैं, जब कोई केमिस्ट से दवा लेते हैं। पर हम चाहते हैं कि धीरे धीरे इन आंकड़ों की पहचान कीजिए। एक छोटे तौर में बताता हूँ कि लगभग उनमें से 10% जो आज भारत में जो लोग हैं जिनको ये जोड़ों की बीमारियाँ, वो सीरियस बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको अंग्रेजी में रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाए। उनमें गॉट भी आता है, उनमें एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, उसमें अनकॉमन डिजीज आती हैं, एसएलई, उनमें चिकनगुनिया आर्थराइटिस एक नई समस्या बन गई भारत में 2006 के बाद। तो उसका भी पूरा हमने विवरण किया है। ये सब बीमारियाँ लगभग 10% लोगों में है। पर अनुमान करिए कि 10% पूरे भारत की जनसंख्या के कितने आंकड़े बनते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 1.4 मिलियन, जो कि अंदाज है कि आज भारत की आबादी है, तो उसमें से कम आपको जो है 150-200 मिलियन लोगों को ये बीमारियाँ हैं। 10% और भी बड़ा बन जाता है, उसके अंदर 3-4 मिलियन बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमने आज ये आपके सामने ये सब प्रकट हमने डिस्कस किया, ये जोड़ों के आंकड़े दिए हैं, उनके आधार पर हमें एक नेशनल प्रोग्राम की आवश्यकता है। हमें एक राष्ट्रीय प्रोग्राम की, अनेकों प्रोग्राम हमारे पास गांव में रूरल हेल्थ कमीशन है, और सरकार ने और कई कार्यक्रम, वुमेन्स इनिशिएटिव है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक के कार्यक्रम शुरू हो गए। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक जोड़ों की बीमारियों का भी एक विभाग उसके अंदर आए, भले ही वो बाकी कार्यक्रम में डाला जाए, अलग से बने। और पब्लिक हेल्थ में हम आखिर में हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें हमारे कई सहयोगी आयुर्वेदा के, आयुष के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ हमारा ये काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर पब्लिक हेल्थ पे एक इंटीग्रेटिव अप्रोच से किन बीमारियों के हल ढूंढे जाएंगे। कि कुछ बीमारियां शुरू में भले ही वो आधुनिक विज्ञान से ठीक होती हैं, पर लाइफस्टाइल करेक्शंस उनको उस स्तर पे लेकर जैसे वो पहले थे, हमें आवश्यकता है आयुर्वेदा की भी, योगा की भी, और भी अन्य खाद्य पदार्थ, डाइटिशियन। तो हम चाहते हैं कि द फ्यूचर में ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम बनेगा, जिसमें रोकथाम का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट तो हो जाती है हॉस्पिटल्स में। हमारे देश में रूमेटोलॉजिस्ट, ऐसे डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड हैं इन बीमारियों में, बहुत बड़ी कमी है। तो वो मेडिकल एजुकेशन में भाग जाएगा, करिकुलम बनेंगे, उनकी ट्रेनिंग बनेगी। तो अब सोच सकते हैं कि कुछ 5-10 वर्षों में जो स्थिति है आज की अपेक्षा वो अच्छी होने लगेगी, और भारत में जो है ये रूमेटोलॉजी जो है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ आर्थराइटिस का एक कार्यक्रम आएगा। सर, ये कार्यक्रम कहाँ पे है और कब होने वाला है? क्या चीज़? संडे को जो कार्यक्रम है वो कहाँ होने वाला है? ये कल सुबह हम इस विशेष एपिडेमियोलॉजी कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि हमारे सहयोगियों ने व्यवस्थित किया है, सौपन, रीना, डॉक्टर इन्होंने बना के। ये कार्यक्रम जो ज़ायडस हॉस्पिटल में सुबह एक कार्यक्रम होगा, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ आपके अहमदाबाद और ये कॉपकॉड, हम जैसे भी लोग हैं, हमारे जो CCRS के जो अहमदाबाद के जो डॉक्टर किरण काले वहाँ की इंचार्ज हैं, पूरे आयुर्वेदा के लोग आएंगे, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे उस कार्यक्रम में, पोस्ट ग्रेजुएट्स, PhD स्टूडेंट्स आएंगे, पब्लिक हेल्थ के, इस तरह से एक वेरियस डिसिप्लिन्स उसमें होंगे, जिसमें कि हम साइंटिफिकली आई विल प्रेजेंटिंग द डेटा की जो हमने कार्यक्रम आज आपको बताया, इसका पूरा डेटा हम कल प्रेजेंट करेंगे फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। वी लगे पब्लिक हेल्थ हम क्या अपेक्षा करते हैं, और उस कार्यक्रम में जैसे हमने अभी गुजरात में कार्यक्रम शुरू करेंगे, ये कार्यक्रम में भी मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदा दोनों मिलकर काम करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। ओके सर।